Good morning, students. Today we will going our next topic of this chapter: what, where, how, and when. And students, this is our lecture number 3. Okay, so let's start. Yes, students. So now we will discuss name of the land. Okay, so let's start. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. And the word India comes from the Hindus called Sindhu in Sanskrit. The Iranis and the Greeks who came to the northwest about 25 years ago and were familiar with the Hindus call it the Hindus or the Indus. So, and the land of the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda. So the earliest composition in Sanskrit, later it was used for the country. So students, हमारी कंट्री के लिए जो मतलब कि हमारी कंट्री के लिए हम अक्सर इंडिया और भारत जैसे नामों का यूज़ करते हैं। ओके, और इंडिया शब्द जो है, इंडिया जो ये वर्ड है, ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और नियर अबाउट 25 ईयर्स एगो नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले जो ईरानीज थे और जो यूनानीज थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोज हिंदोज या इंदोज और इस इंदोज और इस रिवर के जो ईस्ट में जो भी लैंड थी उसको इंडिया उन्होंने कहा। और इंडिया जो भारत नाम है, यस स्टूडेंट्स, तो भारत है। भारत जो भरत नाम का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया? भरत नाम का प्रयोग जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों का एक समूह, यानी यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, उनके लिए उन्होंने इसका भारत नाम, भरत जो है उसका नाम, इसको भरत नाम जो है वो यूज किया। और इस ग्रुप का जो उल्लेख है वो संस्कृत की जो क्या थी, हमारी संस्कृत की मतलब जो अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत ऋग्वेद जो है उसमें भी मिलता है। बाद में इसका जो यूज है वो कंट्री के लिए होने लगा। क्लियर? So now moving on next topic. Yes, students, so there are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago, and these are called manuscripts because they were written by hand, and this comes from the Latin word meaning hand. These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. So, students, actually एक जो पास्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो हम कई तरीक़ों से उसको प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक जो तरीका है पास्ट में लिखी गई बुक्स को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। और ये जो बुक्स होती हैं, ये जो बुक्स हैं, ये हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। एंड ये जो है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये लैटिन वर्ड मेनू से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? हैंड। And these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. And students, क्या है इसमें कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये इनके लिए ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है इनको लिखने के लिए? एक तो पाल्म लीफ का, और एक ना हिमालय के एरिया में जो उगने वाले बार्च नाम का जो ट्री है,
ठीक है। उसके मतलब उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किया गया जो भोजपत्र होता है उस पर ये लिखी हुई मिलती है। Okay, and you can see, yes, you can see the picture of the manuscripts. And what is manuscript? So the manuscript evolved from the Latin manuscriptus, meaning written by hand. Menu is hand and scriptus is to write. So it refers to old documents actually written by hand before books were made, but it can also refer to the writer's unpublished work, whether it's handwritten or typed. एक्चुअली क्या था कि स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसी वजह से क्या था, इसी वजह से उस टाइम पर स्क्राइब्स हुआ करते थे। वो स्क्राइब्स क्या करते, यानी वो नाम स्क्राइब्स, लिपिक जिनको बोलते हो आप, तो स्क्राइब्स होते थे वो लोग ना हाथ से लिखा करते थे इनको, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। Okay, and students, over the years many manuscripts were eaten away the insects, or some were destroyed, but many have survived, often preserved in the temple and monasteries. So इतने वर्षों में उनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट को तो इंसेक्ट ने खा लिया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर भी ऐसे कई मैन्युस्क्रिप्ट आज भी क्या है, अवेलेबल हैं। ओके, और ये जो है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं इनको टेम्पल्स में, मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में से ये हमें प्राप्त हो जाती हैं। यस, so these books dealt with all kinds of subjects: religious belief and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया कि अक्सर जो मतलब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ तो क्या हुई, इंसेक्ट्स ने, जो कीड़े होते हैं वो उन्होंने नष्ट कर दी, कुछ वैसे डिस्ट्रॉय हो गई, और लेकिन कुछ अभी भी सरवाइव कर रही हैं जो कि टेम्पल्स में और जो मोनेस्ट्रीज हैं उनमें वो प्रिजर्व की हुई हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये बुक्स हैं, इनमें क्या है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं और व्यवहार हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इन पुस्तकों में, इन बुक्स में जो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, रिलीजियस बिलीफ्स और एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारे व्यवहार हैं, ओके, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जो राजाओं का जो जीवन रहा है, और मेडिसिन्स एंड साइंस, ठीक है, ये और सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनकी जो चर्चा इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो इपिक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, और जो पोएम्स, कविताएं, प्लेज, नाटक, ये भी हैं, and others one in Prakrit. So and many of these were written in Sanskrit. और इनमें ज़्यादा कहीं तो इसमें संस्कृत में आपको लिखी हुई मिलती हैं, जबकि जो दूसरी हैं वो आपको किस में मिलेंगी, प्राकृत में, प्राकृत लैंग्वेज में और तमिल में। और जो प्राकृत लैंग्वेज है उसका यूज़ आम लोग करते थे। ओके, एंड स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ओके, जो आपके पास क्या है, जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज में आपकी प्रिजर्व करके रखी गई हैं। सो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें आपके क्या क्या आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा मिलता है आपको, रिलीजियस बिलीव्स, ओके, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस, प्लेज, पोएम्स, ओके, तो ये सब आपको इसमें मिलते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So students, we can also study inscriptions. हम लोग जो है inscription की भी study कर सकते हैं। So these are writings on relatively hard surface such as stone or metal,
and sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. So, students, you can also study the inscriptions. So, what is inscriptions? So, inscription are historical, religious, or other record cut, impressed, painted, or written on stone, brick, metal, or other hard surface. मतलब कोई भी हार्ड सरफेस है उसके ऊपर जब क्या किया जाता था, मतलब उसके ऊपर खुदाई करके कट करके या उनको काटा जाता था या उनके ऊपर गोदा जाता था, तो वो लिखा जाता था उनके ऊपर। ठीक है, पत्थरों के ऊपर लिखते थे, मेटल के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, सो ब्रिक्स के ऊपर, तो ऐसे वो लिखा करते थे। तो आप जो है जब स्टडी करते हो तो आप इंस्क्रिप्शंस की भी स्टडी कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे जो हमारे क्या हैं, ऐसे जो राइटिंग्स हैं वो आपको किसके ऊपर, वो आपको हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे आपको पत्थर या फिर जो मेटल होता है, ऐसी जो हार्ड सरफेस वाली सरफेस होते हैं उनके ऊपर आपको मिलेंगी। कभी कभी तो हमारे जो क्या होते थे, किंग्स होते थे और जो जितने भी दूसरे लोग होते थे, वो अपने ऑर्डर्स को इस तरह से उनको क्या करवाते थे, इंस्क्राइब कराते थे, इस तरीके से उनको उत्तीर्ण करवाते थे, उत्कीर्णन करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और कुछ जो और मतलब कई और भी दूसरे प्रकार के जो क्या थे, रिकॉर्ड थे, वो भी आपको मिलते हैं, जिनमें राजाओं जो हमारे किंग्स और क्वींस सहित जितने दूसरे जो मेन एंड वीमेन हैं उनमें मतलब वो भी अपने कार्यों का विवरण जो है वो क्या करवाया करते थे, उनको रिकॉर्ड करवाया करते थे, इंस्क्राइब करवाया करते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो किंग्स थे वो जब लड़ाइयाँ करते थे और जब वो किसी मतलब अपनी बैटल में वो जीत जाते थे, तो वो अपनी विजय का जो रिकॉर्ड है ना, वो भी इसी तरीके से अक्सर रखा करते थे, इस इन इंस्क्रिप्शन के रूप में वो ऐसे रिकॉर्ड रखा करते थे। ओके, so now there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are archaeologists. एक्चुअली क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि देयर आर मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ किया जाता है, दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, जो बनाई जाती थी, जो यूज़ की जाती थी पास्ट के लिए। ठीक है, और मतलब कि जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। एंड दोज हु, और जो इनकी स्टडी किया करते थे, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, जो इनकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आर्कोलॉजिस्ट। Okay, so they study the remains of building made of stones and bricks, painting and sculptures, and they also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pens, ornaments, and coins. And some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. So students, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ओके, ये क्या करते थे, ये जैसे स्टोन हो गई, आपकी ब्रिक होगी, ब्रिक से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं उनके ये अवशेष, और जैसे पेंटिंग्स हो गई और आपके मूर्तियां होगी, उनकी स्टडी करते थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ये लोग क्या करते थे, इसके अलावा जैसे टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए,
जैसे औजार हो गए, टूल्स मतलब औजार, वेपन्स हो गए हमारे हथियार, ओके, पोर्ट्स हो गए आपके, और पेन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हैं, कोइंस हैं। तो ये सब चीज़ें भी, इनका भी वो क्या करते थे, इनके मतलब इनको प्राप्त करने के लिए वो छानबीन और खुदाई भी किया करते थे। ठीक है। और इनमें से कुछ जो गुड्स थी, वो पत्थर, पकी हुई जो मिट्टी होती मिट्टी है, और कुछ जो मेटल की बनी हो सकती थी। और ऐसे जो तत्व जो होते थे वो बड़े ही कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऐसे मतलब ये वो ऑब्जेक्ट थे जो इतनी आसानी से क्या नहीं हो सकते, नष्ट नहीं होते थे, ये वो चीज़ें थी। ओके, तो आप पहले टाइम में देखोगे, अब आजकल पेपर नोट हैं या वो है, तो पता है आपको कि भाई पेपर नोट है वो थोड़े टाइम के बाद फट भी जाते हैं। ठीक है, आप कितने टाइम तक उनको संभाल के रखोगे। देखिए पहले जो है हर एक चीज़ हार्ड सरफेस की जो होती थी चीज़ें, तो वो इतनी जल्दी जो है नष्ट नहीं होती थी। अगर वो ज़मीन के अंदर भी, आपको आज भी देखो, आपको कहीं पर जो है क्या मिल जाता है, ज़मीन के नीचे से सोना निकल रहा है, चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लोग पहले मटकों में भर भर के अपना खजाना, लोग डाकों से चोरी ना कर ले, कोई चोरी करके ना ले जाए, तो लोग ज़मीन में गाड़ के रखते थे। तो वो क्या होता था, वो कभी वो नष्ट कोई ना हुआ, आज भी अगर वो मिलता है तो आज भी वो आपको एज इट इज़ मिलेगा, और उसकी वैल्यू आज के हिसाब से आपको मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों की बनी होती थी, ऐसे ऑब्जेक्ट की होती थी कि ये जल्दी ना नष्ट होने वाली होती थी। ओके, एंड स्टूडेंट्स, so next on moving on next slide. Yes, students, so archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grains or piece of wood have been burned, they survive in a jar form. And historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. And once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. So students, एक्चुअली जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स का, बर्ड्स और फिश, उनकी हड्डियों को भी वो फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। और जो प्लांट्स हैं, यानी जो हमारे ये प्लांट्स हैं, उनके जो रिमेन्स, उनके जो अवशेष हैं, वो बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं। और अगर हम सीड्स ऑफ ग्रेन, यानी जो हमारे अन्न का दाने हैं, और जो हमारे पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी के टुकड़े हैं, अगर वो जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। सो हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस को कौन होते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इनसे जो ज्ञात इंफॉर्मेशन है, उनके लिए हिस्टोरियंस प्राय सोर्स शब्द का यूज़ करते हैं। जो मतलब सोर्स शब्द जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, और हिस्टोरियंस उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं। तो सोर्स के प्राप्त होते ही पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हो जाता है, क्योंकि ये जो सोर्स हैं, इनकी हेल्प से हम धीरे धीरे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। और जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो उन डिटेक्टिव्स की तरह हैं जो इन सभी सोर्सेज का यूज़ सुराग के रूप में कर अतीत की या पास्ट को जानने का प्रयास करते हैं।
So you can see the slide. Yes, students. So historians or scholars study the past, source, and information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Okay. So I think it is sufficient for today. So that's all for today. Have a good day.